Hello student, today we are going to start chapter number first of snapshot, and we have already completed two part of this chapter in previous videos. Today I am going to start third part of this chapter. As you know, the chapter name is The Summer of the Beautiful White Horse, and it is a beautiful story about two tribal child and a white beautiful horse. In this story I have told you about a tribal community who had known for his honesty and trust and truthness, and these guys and these boys belong to that family. बच्चों, मैंने आपको बताया था इस स्टोरी के बारे में जिसमें दो लड़के होते हैं, एक का नाम आराम और एक का नाम मुराद होता है। आराम अपने घर में सोया हुआ था कि मुराद सुबह 4 बजे आता है घोड़े को लेके और इसको आवाज़ देता है आराम को। आराम जब उठता है तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं करता है कि घोड़ा वो भी उनके सामने है, क्योंकि वो लोग एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे और उनके परिवार में घोड़ा आना या घोड़े की सवारी करना एक बहुत बड़ी बात थी, बहुत अमीरी की बात थी। तो उसको अपनी आंखों पे आश्चर्य नहीं हुआ। इनफैक्ट दोनों लोग जो है घुड़सवारी करने चले जाते हैं और 1 बाय 1 घुड़सवारी करके वापस आते हैं। दोनों में बात हो रही होती है और आराम मुराद से पूछता है कि तुमने ये घोड़ा कब चुराया, कहाँ से चुराया। ये उनका कन्वर्सेशन चल रहा है। प्रीवियस 2 वीडियो इसके हो चुके हैं, थर्ड वीडियो ये आपके लिए मैं लाया हूँ। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। आई विल रीड द बुक एंड होप यू विल ओपन द बुक एंड सी इन द बुक। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड. It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. Who said anything about stealing a horse? He said. Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? Not until this morning, he said. Are you telling the truth? I said. Of course not, he said. But if we are found out, that's what you are to say. I don't want both of us to be liars. All you know is that we started riding this morning. All right, I said. He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard, which at one time had been the pride of a farmer named Fatwajan. There were some oats and dry alfalfa in the barn. We began walking home. It was not easy, he said, to get the horse to behave so nicely. At first, it wanted to run wild, but as I have told you, I have a way with a horse. I can get it to want to do anything I want it to do. Horse understand me. How do you do it? I said. I have an understanding with a horse, he said. Yes, but what sort of an understanding? I said. A simple and honest one, he said. Well, I said, I wish I knew how to reach an understanding like that with a horse. You are still a small boy, he said. When you get to be 13, you will know how to do it. I went home and ate a hearty breakfast. That afternoon, my uncle Khosrow came to our house for coffee and cigarette. He sat in the parlor and sipping and smoking and remembering the old country. Then another visitor arrived, a farmer named John Byro, an Assyrian who out of loneliness had learned to speak Armenian. My mother brought the lonely visitor coffee and tobacco, and he rolled a cigarette and sipped and smoked. And then at last, sighing sadly, he said, my white horse
which was stolen last month is still gone. I cannot understand it. My uncle Khosrow became very irritated and shouted, "It is no harm. What is the loss of a horse? Have not we all lost the homeland? What is this crying over a horse? That may be all right for you, a city dweller, to say," John Byro said. "But what of my Surrey? What good is Surrey without a horse? Pay no attention to it," Uncle Khosrow roared. "I walked 10 miles to get here," John Byro said. "You have legs," my Uncle Khosrow shouted. "My left leg pains me," the farmer said. "Pay no attention to it," my Uncle Khosrow roared. "The horse cost me $60," the farmer said. "I spit on money," my Uncle Khosrow said. He got up and stalked out of the house, slamming the screen door. My mother explained, "He has a gentle heart," she said. "It is simply that he is homesick and such a large man." The farmer went away and I ran over to my cousin Murad's house. Let's explain the para. "How long ago did you steal this horse?" I said. मैंने उससे कहा, ये बताओ तुमने ये घोड़ा कब चुराया, कितने दिनों से तुम्हारे पास ये घोड़ा है। आराम ने इस स्टोरी को डिस्क्राइब किया है आगे बड़े होकर। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स? आई सेड, मैंने उससे पूछा था कि ये बताओ तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया, कितने समय से तुम्हारे पास ये घोड़ा बना हुआ है। इट सडनली dawned ऑन मी दैट ही हैड बीन टेकिंग दिस अर्ली मॉर्निंग। अचानक से मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ये तो मेरे पास आज सुबह ही घोड़ा लाया, लेकिन ये तो बहुत दिनों से इस घोड़े को दौड़ा रहा होगा। Rides for some time and had come for me this morning only because he know how much I long to ride. बहुत दिनों से घोड़े को दौड़ा रहा होगा और मेरे पास सिर्फ इस वजह से आया कि वो जानता था कि मुझे घुड़सवारी करना कितना पसंद है, कितना अच्छा लगता है, इस वजह से मेरे पास आया। Who said anything about stealing a horse? He said, उसने कहा, किसने कहा कि मैंने घोड़ा चुराया है? कौन कह रहा है? मैंने तो घोड़ा नहीं चुराया। Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? लेकिन मैंने कहा कि हाँ मुझे पता चल गया, कैसे भी पता चला, लेकिन आप ये बताइए कि आप इस घोड़े को कब से दौड़ा रहे हो। Not until this morning, he said. उसने कहा बस आज सुबह से नहीं दौड़ा रहा, हाँ कुछ दिन हो गए। Are you telling the truth? I said. मैंने उससे पूछा क्या तुम सच बोल रहे हो, क्या जो तुमने बोला है कि हाँ बस आज सुबह से नहीं, कुछ सुबहों से जो है या कुछ मॉर्निंग से मैं इसको चला रहा हूँ। Of course not, he said. हाँ बिल्कुल नहीं, मैं सच नहीं बोल रहा हूँ। But if we are found out, that's what you are to say. यदि अगर हमें सबको पता चल गया कि हम लोग ने ऐसा किया है, हम लोग के पास घोड़ा है, तो इसका क्या होगा, क्या नतीजा होगा? तुम क्या कहना चाहोगे? I don't want both of us to be liar. तो आराम कहता है कि हम नहीं चाहते कि हम दोनों लोग झूठे कहलाएं। All you know is that we started riding this morning. क्योंकि आप जानते हो कि हम दोनों लोगों ने आज सुबह ही सवारी करना शुरू किया है। All right, I said. मैंने कहा कि ठीक है। He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard. अब वो धीरे धीरे उस वाइनयार्ड के ज़रिए जो है हम लोग बाहर निकलते हुए उस सुनसान एरिया से, विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ अ फार्मर नेम्ड फतवाजान। एक समय की बात है कि एक फतवाजान नाम का एक किसान हुआ करता था और उसकी सारी ज़मीनें हुआ करती थी। उस ज़मीनों से गुज़रते हुए जो आज डिजर्टेड पड़े हुए हैं, बंजर या खाली पड़े हुए हैं, देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फल्फा, कुछ जो है सूखी घास पड़ी हुई है वहाँ पे, और जो है बिल्कुल जहाँ पे लिखा हुआ है ना सम ओट्स, जौ जई आप जानते हैं ना, बहुत सारे लोग खाते भी हैं, ये पड़े हुए थे इन द बार्न, उस खेत में, उस वीरान जगह पर। वी बिगन वॉकिंग होम, हम लोग ने अपने घर की तरफ आना शुरू किया। इट वॉज नॉट ईजी, ही सेड, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली।
उसने कहा कि बहुत आसान नहीं है कि घोड़े को बड़े आराम से आप लेकर चले जाएं, चुपचाप तरीके से बिना शोर करे, वो हिला भी नहीं रहा है। एट फर्स्ट इट वांटेड टू रन वाइल्ड, पहले तो ऐसा लग रहा था ये जंगली जानवरों की तरह भाग रहा है। एट फर्स्ट इट वांटेड टू रन वाइल्ड, बिल्कुल पागल होकर भागना चाहता था। बट एज आई हैव टोल्ड यू, कह रहे लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, आई हैव अ वे विद अ हॉर्स, कि मैं घोड़ों को समझता हूँ, मैं घोड़ों को काबू करना जानता हूँ। आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग, और मैं जो चाहूँ वो इससे करा सकता हूँ। आई वांट इट टू डू हॉर्स अंडरस्टैंड मी, और मैं जो चाहूँ वो करा लूँ। घोड़े मुझे समझते हैं, मेरी भाषा को समझते हैं, और मैं उन्हें काबू कर सकता हूँ। हाउ डू यू डू इट, आई सेड, मैंने उससे पूछा कि अच्छा ये बताओ तुम ये कर कैसे लेते हो। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स, ही सेड, उसने कहा घोड़ों को मैं बहुत अच्छे से समझ जाता हूँ, घोड़े मुझे समझ जाते हैं। यस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, आई सेड, लेकिन मैंने पूछा कि किस तरह की समझदारी, किस तरह का एक दूसरे को समझना, क्या बात करते हो, कैसे समझाते हो। अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड, उसने कहा बहुत साधारण और ईमानदारी वाला तरीका है। वेल आई सेड, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स। तो आराम कहता है काश मैं भी जो है इस बात को समझ पाता, घोड़े की भाषा समझ पाता, उसको समझा पाता, उससे बात कर सकता था। यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, ही सेड, उसने कहा तुम तो अभी बच्चे हो, तुम क्या समझोगे। वैन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट, लेकिन जब तुम 9 साल से 13 साल के हो जाओगे तब इस बात को समझ पाओगे कि घोड़े को किस तरह से काबू में करना। आई वेंट होम एंड एट अ हार्डली ब्रेकफास्ट, मैं घर चला गया और जम के जो है नाश्ता किया, हार्टली खूब नाश्ता किया। दैट आफ्टरनून माई अंकल खुशरो केम टू अवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट, उसी दिन की बात है कि मेरे जो अंकल थे खुशरो, जो पागल माने जाते थे, जिस मुराद को भी पागल समझा जाता था, अंकल को भी खुशरो की, तो खुशरो अंकल जो है मेरे घर कॉफ़ी और सिगरेट के लिए आए हुए थे। उस टाइम पे घर घर में कॉफ़ी और सिगरेट या बीड़ी पिलाई जाती हो। ही सेट इन अ पार्लर सिपिंग एंड स्मोकिंग द रिमेंबर ओल्ड कंट्री, बाहर बरामदे में बैठ जाते हैं और सिपिंग एंड स्मोकिंग, कॉफ़ी का और चाय का मज़ा ले रहे हैं, एंड स्मोकिंग, और सिगरेट और बीड़ी को जो है स्मोक कर रहे हैं, एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री, और अपने पुरानी चीज़ों को, अपने गांव की कुछ बातों को याद कर रहे हैं। देन अनदर विजिटर अराइव, एक विजिटर उनके पास आता है, अ फार्मर नेम्ड जॉन बायरो, एक किसान था जिसका नाम जॉन बायरो था, एंड एशियन हु, और वो क्या था, एशियन था, हु आउट ऑफ लोनलीनेस हैड लीन टू स्पीक आर्मेनियन, लेकिन उसने धीरे धीरे आर्मेनियन भाषा को बोलना सीख लिया था। माई मदर ब्रॉड द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड टोबैको, मेरी माँ जो है वो अकेले आए हुए किसान को, जॉन बायरो नाम का वो किसान था, उसके लिए कॉफ़ी और टोबैको यानी कि तंबाकू लेकर आ जाती है। ही रोल्ड अ सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक, उसके बाद वो रोल्ड करके उसको सिगरेट बनाता है या बीड़ी बनाता है और उसको फिर स्मोक करता है। देन एट लास्ट शाइंग सैडली, और फिर उदासी भरी तरीके से, ही सैड, उदासी भरे तरीके से वो बोलता है, माई वाइट हॉर्स विच वाज स्टोलन लास्ट मंथ, मेरा सफ़ेद घोड़ा जो कि पिछले महीने चुरा लिया गया था। कितने दिन हो गए चुराए हुए, 1 महीना, यानी कि मुराद 1 महीने से उस घोड़े को चला रहा था, और आज सुबह जो है आराम के पास आया था राइडिंग करने के लिए। सोचिए, लास्ट मंथ इज़ स्टिल गॉन, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, 1 महीने से वो गायब है और मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि मेरा घोड़ा गया तो गया कहाँ। माई अंकल खुशरो बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड, मेरे चाचा जी जो थे खुशरो बड़े इरिटेट हो गए, एंड शाउटेड, और चिल्लाने लगे, इट्स नो हार्म, कोई नुकसान नहीं हुआ है। व्हाट इज़ द लॉस ऑफ अ हॉर्स, घोड़ा खो गया तो खो गया, क्या हुआ। हैव नॉट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, क्या हमने अपनी पूरी ज़मीनों को खो दिया, अपने घर को खो दिया, घोड़ा खो गया तो खो गया। व्हाट इज़ दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स, अरे घोड़े के लिए चिल्लाना तो क्या चिल्लाना हुआ। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी ड्वेलर टू से, जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो ने कहा आप जैसे शहर में रहने वालों के लिए कुछ नहीं होगा घोड़ा, बट व्हाट ऑफ माई सरे, लेकिन मेरे लिए बहुत है, और मेरी बग्घी का क्या, जो बग्घी खड़ी हुई है, व्हाट गुड इज़ अ सरे विदाउट अ हॉर्स, बिना घोड़े के कोई बग्घी का क्या काम है, कौन घसीटेगा, कौन खींचेगा उसको। पे नो अटेंशन इट
माई अंकल कौशप रोड, मेरे चाचा जी उसके ऊपर दहाड़ने लगे कि उस पर कोई ध्यान मत दो। आई वॉक 10 माइल्स टू गेट हेयर, जॉन बायरो सेड। जॉन बायरो ने कहा मैं यहाँ 10 मील चल कर आया हूँ, 15-16 किलोमीटर चल कर आया हूँ, और तुम कह रहे हो कोई ध्यान न दो। यू हैव लेग, माई अंकल कौशप शाउटेड। मेरे अंकल फिर से चिल्लाने लगे, अरे तुम्हारे पास पैर है तो तुम चल कर आ गए। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड। उसके किसान ने कहा, अरे मेरे पाँव में दर्द हो गया, इतनी दूर में चल कर आया हूँ। पे नो अटेंशन इट टू माई अंकल कौशप सेड। मेरे अंकल कौशप ने फिर कहा, अरे इस पर ध्यान मत दो कि तुम्हें दर्द हो रहा है। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड। उस किसान ने कहा कि वो घोड़ा हमने $60 यानी कि $60 में ख़रीदा था। $60 बहुत होते हैं ना, आज के टाइम पे $1 की जो वैल्यू है अबाउट 70 रुपीज़ है। $60 में उसको ख़रीदा था। आई स्पेट ऑन मनी, माई अंकल कौशप सेड। तो मेरे चाचा जी कहते हैं मैं थूकता हूँ ऐसे पैसे पर। ही गॉट अप एंड स्टाक आउट ऑफ द हाउस स्लैमिंग द स्क्रीन डोर। खड़ा हुआ और गुस्से से घर से बाहर निकल गया, दरवाजे को धक्का मारता हुआ। माई मदर एक्सप्लेन, मेरी माँ ने उसे एक्सप्लेन किया। ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, शी सेड। उसने कहा, अरे उनका दिल बहुत अच्छा है। ऊपर से बोल देते हैं, इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच अ लार्ज मैन। बड़े लोग हैं, थोड़ा सा बहुत बीमार रहते हैं, हैवी शरीर है, लेकिन वो दिल के बहुत अच्छे हैं। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कज़िन मुराद। वो किसान चला गया और मैं दौड़कर अपने कज़िन मुराद के घर पहुंच गया, उसको ये खबर देने के लिए कि वो, और उससे बात करने के लिए कि तुमने घोड़ा 1 महीने से चुरा रखा है। और वो किसान आज ढूंढता हुआ घर तक आ गया। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री ट्राइंग टू रिपेयर द हार्ड विंग ऑफ अ यंग रॉबिन विच कुड नॉट फ्लाई। तो मेरा जो कज़िन था मुराद, वो एक पीच ट्री यानी कि एक पेड़ के नीचे, एक फल होता है पीच, उसके नीचे बैठा हुआ था और एक रिपेयर द हार्ड विंग ऑफ द यंग रॉबिन, एक चिड़िया होती है जिसका नाम रॉबिन होता है, उसके पर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो उसको वो रिपेयर कर रहा ताकि वो चिड़िया फिर से उड़ सके। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, उस चिड़िया से भी बात कर रहा था मुराद। व्हाट इज़ इट, ही सेड। उसने कहा ये क्या है। द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड। मैंने कहा किसान आया था जिसका नाम जॉन बायरो है। ही विजिटेड अवर हाउस, हमारे घर पहुंच गया था वो। ही वांट्स हिज हॉर्स, और अपना घोड़ा वापस चाहता है। यू हैव हैड इट अ मंथ, तुम्हारे पास ये घोड़ा 1 महीने से, और तुम कह रहे कुछ ही दिन पहले मैंने इसको चुराया है। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड। लेकिन अब एक बात गौर से सुनो, तुम घोड़ा जब तक वापस नहीं दोगे जब तक मैं सवारी करना न सीख लूँ। आराम अभी तो से ये कहने आया था कि तुम 1 महीने से घोड़ा चुराए हो, और वो जो है जॉन बायरो घर तक आ गया, लेकिन उससे क्या कह रहा है कि वादा करो कि जब तक मुझे जो है सवारी करना नहीं सिखा दोगे तब तक घोड़ा वापस नहीं करोगे। आई विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कज़िन मुराद सेड। मुराद मेरे चचेरे भाई ने कहा कि तुम्हें तो 1 साल लग जाएगा घोड़ा सीखने में, अभी तो बहुत समय लग जाएगा। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड। मैंने कहा आराम ने जो है मुराद से कहा तो ठीक है, हम लोग घोड़ा 1 साल रखेंगे अपने पास। माई कज़िन मुराद लीप टू हिज फीट, मेरा भाई जो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। व्हाट, ही रोड, वो चिल्लाया, क्या 1 साल? आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ द ग्रेगोरियन फैमिली टू स्टील? तुम ग्रेगोरियन फैमिली के एक सदस्य को चुराने की बात कर रहे हो? द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर, घोड़ा अब उसके मालिक के पास जाकर रहेगा। वेन आई सेड, मैंने आराम ने यानी मुराद से पूछा, कब जाएगा भाई? 1 महीने से तुम रखे हुए हो। इन 6 months एटलीस्ट, ही सेड। उसने कहा कम से कम 6 महीने में तो चला ही जाएगा। ही थ्रू द बर्ड इनटू द एयर, उसके बाद उसने उस चिड़िया को जो है आसमान में, आकाश में उड़ा दिया। द बर्ड ट्राई हार्ड ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, और पूरी कोशिश की उसने उड़ने की, लगभग दोबारा से फिर से वो गिरने वाली थी। बट एट लास्ट फ्लू अवे हाई एंड से, और आखिरकार वो उड़ने लगी और सीधी चली गई। अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks माई कज़िन मुराद एंड आई टुक द हॉर्स आउट ऑफ द barn on deserted vineyard where we were hiding it and rode it, and every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grapevines and small trees and threw me and run away. हर सुबह ये दोनों लोग, आराम और मुराद जो है,
जैसा कि आज सुबह किया था। हर सुबह जो है इस तरह से वो करते रहे, लगभग 2 हफ्ते तक सुबह घोड़ा लाते थे, दोनों राइडिंग करते थे, फिर अकेले अकेले राइडिंग करते थे। मुराद अकेले राइडिंग कर लेता था, लेकिन जब आराम की अकेले राइडिंग करने की बारी आती थी तो घोड़ा इसको गिराकर भाग जाता था। नेवरथलेस आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड एंड वे माई कज़िन मुराद रोड। मैं सोचता था कि कोई बात नहीं, जिस तरह से मेरा जो चचेरा भाई है मुराद वो राइडिंग करता है, मैं भी एक दिन उसी की तरीके से राइडिंग करने लगूंगा। वन मॉर्निंग ऑन द वे टू द फतवाजन डिजर्टेड वाइनयार्ड वी रैन इनटू द फार्मर जॉन बायरो हु वाज ऑन हिज वे टू टाउन। एक दिन की बात है जब हम लोग जो है डिजर्टेड वाइनयार्ड की तरफ उसको बांधने के लिए जा रहे थे, तो वी रैन इनटू द फार्मर, तो हमने देखा कि दौड़ता हुआ एक किसान आ रहा है जिसका नाम क्या था, जॉन बायरो। लेट मी डू द टॉकिंग माई कज़न मुराद सेड आई हैव अ वे विथ फार्मर। मेरे भाई मुराद ने कहा कि चलो मुझे बात करने तो, मुझे पता है इन किसानों से कैसी बात करनी है। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो माई कज़न मुराद सेड टू द फार्मर। मेरे कज़िन ने, मेरे चचेरे भाई ने कहा, अरे नमस्कार, सुबह का नमस्कार हो आपको किसान जी। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली। वो किसान जॉन बायरो उस घोड़े को बड़ी उत्सुकता से देखने लगा। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड ही सेड। उसने कहा, मेरे दोस्त के लड़कों, सुबह का नमस्कार। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स। तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है। माई हार्ट माई कज़न मुराद सेड इन अर्मेनियन। अर्मेनियन भाषा में मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा कि मेरे घोड़े का नाम माई हार्ट है। अ लवली नेम जॉन बायरो सेड फॉर अ लवली हॉर्स। जॉन बायरो ने कहा, अरे एक खूबसूरत घोड़े के लिए खूबसूरत नाम है, बहुत सुंदर नाम है। आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वाज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स एगो। मैं कसम खा सकता हूँ कि ये वैसा ही घोड़ा है जैसा घोड़ा मेरे पास था और जो महीनों पहले चुरा लिया गया था। मे आई लुक इन टू हिज माउथ। जॉन बायरो ने कहा, क्या मैं इसके मुँह में देख सकता हूँ। ऑफकोर्स मुराद ने कहा, हाँ बिल्कुल देख सकते हो, क्यों नहीं देख सकते हो। द फार्मर लुक्ड इन टू द माउथ ऑफ द हॉर्स। उस किसान जॉन बायरो ने उस घोड़े के मुंह में देखा। टूथ फॉर टूथ ही सेड। उसने कहा, हू बहू वैसे ही दांत जैसे दांत मेरे घोड़े के थे। आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स इफ़ आई डिड नॉट नो योर पेरेंट। मैं कसम खाता हूँ कि ये मेरा ही घोड़ा होता यदि तुम मेरे दोस्त के बेटे न होते। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी। क्योंकि तुम्हारा परिवार तो ईमानदारी के लिए जाना जाता है। इज़ वेल नोन टू मी। मैं जानता हूँ तुम सब लोग ईमानदार हो, तुम लोग चुरा ही नहीं सकते हो। यर द हॉर्स इज़ द ट्वेन ऑफ माई हॉर्स। ये घोड़ा तो बिल्कुल मेरे घोड़े का जुड़वा है, बिल्कुल सेम घोड़ा है। अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आईज इंस्टीड ऑफ हिज हार्ट। एक सस्पिशियस यानी जिसके ऊपर शक हो, उसने शक तो किया। सस्पिशियस मैन वुड बिलीव। तो एक शक करने वाला आदमी किस चीज़ पर बिलीव करता है, हिज आइज, अपनी आंखों पर बिलीव करता है और अपने दिल पर नहीं बिलीव करता। गुड डे माई यंग फ्रेंड। उसने कहा, मेरे नौजवान दोस्तों गुड बाय। गुड डे जॉन बायरो माई कज़िन मुराद सेड। मेरे कज़िन मुराद ने कहा, गुड डे, आपका भी दिन भी शुभ हो। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स ऑफ जॉन बायरो वाइनयार्ड। जब सुबह आई हम लोग ने उस घोड़े को जॉन बायरो के वाइनयार्ड में आखिरकार रख दिया एंड पुट इट इन द बार्न। और वो जो एरिया था, वो तबेला था, वहाँ पर उसको रख दिया। द डॉग फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड। कुत्ते बिना शोर किए हुए हम लोग के पीछे पीछे भागते रहे। द डॉग्स आई विस्पर टू माई कज़िन मुराद आई थॉट दे वुड बार्क। कुत्ते जो है मेरे कज़िन मुराद के पीछे थे। मुझे लगा, आराम को लगा कि मुराद को ये कुत्ते भौंकेंगे। दे वुड एट समबडी एल्स ही सेड आई हैव अ वे विद डॉग। मैं कहा, वो नहीं भौंकेंगे, मुझे पता है कि इन कुत्तों को कैसे काबू रखना है। मुराद ने कहा, माई कज़िन मुराद पुट हिज आर्म अराउंड द हॉर्स। मेरे कज़िन मुराद ने घोड़े के ऊपर, जब उससे विदा ले रहा था, घोड़े के ऊपर अपना हाथ रखा। प्रेस हिज नोज इनटू द हॉर्स नोज। और अपनी नाक को जो है उसकी नाक से रगड़ा थोड़ा सा। पेटेड इट, उसके पीठ पर हाथ फेरा। एंड देन वी वेंट अवे। उसके बाद हम लोग चुपचाप से चले गए। दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू आवर हाउस इन सरे। उस दिन जॉन बायरो अपनी बग्घी के साथ हमारे घर आया। एंड शोड माई मदर द हॉर्स दे हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न। और हमारी माँ को जो है वो घोड़ा दिखाया कि देखो ये घोड़ा था हमारा, चुर गया था और आज अपने आप वापस आ गया है। आई डो नॉट नो व्हाट टू थिंक ही सेड।
मुझे नहीं पता था कि वो इस बारे में क्या सोचता है। द हॉर्स इज स्ट्रोंगर देन एवर, और वो कहता है कि घोड़ा पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया है। बेटर टेम्पर्ड, पहले से कम गुस्सा करता है। आई थैंक गॉड, मैं भगवान का शुक्र अदा करता हूँ। माई अंकल खुशरो हु वाज इन द पार्लर, मेरे अंकल जी जो कि बरामदे में बैठे हुए थे, बिकेम इरीटेटेड एंड शाउट, परेशान हो गए और चिल्लाने लगे। क्वाइट मैन क्वाइट, शांत रहो, बहुत चिल्ला रहे तुम। योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, पे नो अटेंशन टू इट, तुम्हारा घोड़ा वापस आ गया, इस पर कोई ध्यान मत दो। दैट द स्टोरी ऑफ द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। I hope you like the story and you like the video as well. If you have any problem, comment in the comment box. That's end of the chapter today as well as end of the lecture. Thank you very much.